स्टूडेंट्स रिप्लाई करियो अछि मतलब contents of our topic will be introduction of hip joint type and variety, articulation, ligaments, blood supply, nerve supply, muscle and movements in hip joint. Hip joint allow the same movement as mobile shoulder joint, but in the range of movement in hip joint is slightly restricted as compared to shoulder joint. That is, in hip joint up to some degree movement are possible, while in shoulder all movements are possible easily. Uh, Hip joint is a type of synovial ball and socket joint. Okay. Here the head of the femur act is a ball while the acetabulum in hip joint act is a socket. This ball articulate with socket-like structure of hip joint that is we call acetabulum in which various types of movements are possible here. How hip joint articulated? The head of the femur articulated with the acetabulum of hip bone to form the hip joint. خبر باندې پوه شئ. The head of the femur articulated with acetabulum of hip bone to form the hip joint. The head of the femur forms more than half of the sphere and is covered by hyaline cartilage except at the fovea capitalis. The acetabulum presents a horse-shaped, lunate articulate surface on acetabular notch and acetabular fossa. Here in this diagram you can see this is the whole hip bone. Okay, the ilium, ischium and pubis, these three bone articulated here in acetabulum. This is the femur. Femur can further be divided into greater trochanter, lesser trochanter. The head of the femur here articulated with the uh, socket-like structure in hip joint which we call acetabulum. Clear? This diagram show more clear structure. Here, this whole area we call acetabulum. The area which surrounded the acetabulum is called acetabular labrum. Labrum پښتو کې مطلب خلک چې شونډې ورته وایي که نه لکه مطلب څومره زموږ سره ایجز راځي ایجز lips like structure at the labrum. This reddish structure of acetabulum is acetabular labrum. Every structure present here have specific role in hip joint, specific in its stability and support. Okay, this is the head of the femur. This is the fovea centris to which ligament of head of the femur attach. This is the ligament of head of the femur. Here we have capsule. We have multiple ligaments here which are attached to the hip joint and femur, which play vital roles in support and protection, okay, and its stability. I think this topic is not in your book, so you should have to learn it here. If in exam someone asks you that why hip joint is so stable, your answer should be that the hip joint is unique in having a high degree of stability as well as mobility.
The stability occurs but tension and strength of ligament. This point is very important because ligaments present in hip joint are so much stronger than shoulder joint. That's why here in hip joint dislocation occur very rarely as compared to shoulder joint. In hip joint, there is no such type of dislocation. Dislocation occur, but very rarely. Okay. The most important factor here is strength of the surrounding muscle. Surrounding muscle is the neck of the femur made by nature in such a way that it gives strong stability to the joint. Another factor which is less important is atmospheric pressure. Dr. Anwarzeb, sorry to interrupt you. Can you hear me? Dr. Aziz is here. Gigi, as I told you that stability of the hip joint is very unique. The stability or strength depend upon the depth of the acetabulum and narrowing of the mouth of the acetabulum labrum. Second important factor here is tension and strength of ligament. The third factor is strength of the surrounding muscles. The fourth factor is length and ubiquity of the neck of the femur. The last one is atmospheric pressure, which is not so important but have some rules in stability. I told you that here in hip joint we have strong ligaments which play vital roles in its stability. These ligaments are the fibrous capsule, iliofemoral ligament, tubofemoral ligament, ischiofemoral ligament, ligament of the head of the femur, acetabular labrum, transverse acetabular ligament. Remember one thing here is this iliofemoral, Hello, sir. pubofemoral, and Hello. ischiofemoral. These three ligaments are so strong that it make hip Hello, joint sir. so stable that Hello. no such type of dislocation is Yeah, no. possible here. Okay, now we will Sir, sir, مونږ د پرنسپل صاحب سره خبره کوله د کلاسز باره کې. پرنسپل صاحب سوي او بیا کټ شو زه په نشم چې سر سوي اوس کوم کلاس کې شته خو د مایک کې سو آی تھنک مطلب multiple ligaments چې دي هغه responsible دي for strength and support of hip joint پای کې زموږ سره لورنۍ چې د fibrous capsule ده जहाँ पर भी हमारे साथ जॉइंट्स होगी तो वहाँ पर हमारे साथ कैप्सूल होगा कैप्सूल जो है ना उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होते हैं सर जो स्पेसिफिक लिगामेंट है जो कि मोस्ट स्टेबल है यहाँ पर वो हमारे साथ है इलियोफेमोरल लिगामेंट pubofemoral ligament and ischiofemoral ligament. These three ligaments are very important in its stability. Okay, other ligaments are ligament of the head of the femur, acetabular labrum, and transverse acetabular ligament. Every ligament I will show you here in diagram. Okay, now what is fibrous capsule? څنګه چې سره تاسو ته وایي کنه چې مطلب اناټمي دي چې هغه پریکټیکلی مونږه تاسو ته الته کوو نو کلیر به کنه تاسو ته لکه پرس کا مونږ تاسو ته هینډز موومېنټ کو چې کم ټایپ موومېنټس پاسبل دي کنه نه هغه پریکټیکلی سره تاسو ته شو کوي نو کیږي نو دی خو لک شانتي مطلب انلاین کلاسز کې لګ دغه دی خو تاسو سایډ نه به مطلب لګ کوپریشن پکاري ټیک ده نور به وشي ان شاء الله کلاس دا ختم شي نو تاسو څه کوېسچن نو بیا به هم ریپیټ وکړو ها fibrous capsule. It is attached on the hip bone to the acetabular labrum, including the transverse acetabular ligament, and to the bone above and behind the acetabulum.
Uh, this fibrous capsule is very strong anterior-superiorly. This part is subjected to maximum tension in specifically in its standing position. Here, this diagram show more clear picture of hip joint. Here we have this whole uh, hip bone, in which I told you in my yesterday class that the ilium, ischium, and pubis, these all three bone here attach in acetabular area. This bony part is covered by hyaline cartilage. Then synovial fluid is present between these two cartilage. Here we have head of the femur, which is also covered by hyaline cartilage. This synovial fluid uh, allow the hip joint to become more freely. Here, this structure you can see, this is the capsule of the joint, okay? Fibrous capsule of the joint, which cover uh, whole of the joint like a cape, okay? It doesn't allow synovial fluid to go outside. Further ligaments here are attached from different direction, which we will study onward, okay? कैप्सूल की समझ आई आप लोगों को? ये हमारे साथ हेड ऑफ द फीमर है, ठीक है? ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, लेजर ट्रोकेंटर। ये हमारे साथ जो है ना हिप बोन में जो एसिटाबुलर जो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है वो है। ये दोनों बोन जो हमारे साथ है इस ये कवर है हाइलिन कार्टिलेज से, और दोनों हाइलिन कार्टिलेज के दरमियान हमारे साथ क्या है? साइनोवियल फ्लूइड है। क्लियर? और इस होल स्ट्रक्चर को हमारे साथ फाइब्रस कैप्सूल ने कवर किया है। ये फाइब्रस कैप्सूल है हमारे साथ, ठीक है? असल में ये वन डायरेक्शन पे ये पिक्चर ली है ना, होल ऑफ द हिप जॉइंट जो है ना वो कवर किया हुआ होता है कैप्सूल ने। Posterior anteriorly the capsule is thin and loosely attached to the bone. जैसा कि मैंने आप लोग के यहाँ पर बताया कि ये फाइब्रस कैप्सूल जो है ना ये एंटीरियर सुपीरियरली इट्स मेक अ वेरी thick and firm attachment, but here the capsule attach very loosely in posterior inferiorly position, okay? So if dislocation, I already told you that dislocation occur very rarely in hip joint, but if it occur then only posterior inferior dislocation is possible here in hip joint, okay? Because the capsule is very weak in posterior inferior position. The capsule is made up of two types of fibrin. The outer fibrin is longitudinal and the inner fibrin we also call zona orbicularis. The joint cavity communicate with the bursa lying deep to the tendons of psoas major. Now we have another ligament, that is the iliofemoral ligament. It is inverted Y-shaped ligament of big low, lies anteriorly. ये पोजीशन याद करने होंगे आप लोगों को कि इलियोफेमोरल लिगामेंट कहाँ पर अटैच है हिप जॉइंट में, इलियोप्यूबिक और इलियो ये बाकी जो लिगामेंट्स है वो कहाँ कहाँ पर अटैच है, इसकी स्पेसिफिक पोजीशंस है, ठीक है? तो इलियोफेमोरल लिगामेंट हमारे साथ इंटीरियरली अटैच है। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी. It prevents the trunk from falling downward in the standing posture. Clear? It is triangular in shape. ये हमारे साथ है इलियोफेमोरल लिगामेंट, ठीक है? ये जो लाइट रेड कलर आप लोगों को नजर आता है ना, ये हमारे साथ इलियोफेमोरल लिगामेंट है. As the name indicate,
The iliofemoral ligament originated from the ilium and here inserted on different position खासकर जो इंटीरियर साइड है ना उस पे ये फीमर के साथ अटैच है ठीक है here another ligament which also plays strong role in stability is pubofemoral ligament as the name indicate it also attached to the pubic bone of the hip joint okay to the फीमर के साथ ये सारे तीनों लिगामेंट्स अटैच होते हैं इसलिए इसको फीमोरल लफ्ज इसमें आया है इलियो इसमें यहाँ पर इसलिए आया है कि यहाँ पर ये इलियम के साथ अटैच है यहाँ प्यूबिक बोन के साथ अटैच है और इशियो फीमोरल लिगामेंट जो है ना ये इशियम के साथ अटैच है ठीक है ये जो इशियल ट्यूब्रोसिटी है इसी थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये अटैच है खासकर पोस्टीरियरली ओके ये इलियोफेमोरल इंटीरियरली है और इशियोफेमोरल जो है ना मोस्टली पोस्टीरियर Now the second ligament we have is pubofemoral ligament. It is support the joint inferomedially. Okay, inferomedially. It is also triangular in shape. Superiorly, it is attached to the iliopubic eminence, the obturator crest, and the obturator membrane. Inferiorly, it merges with the anterior-inferior part of the capsule and with the band of the iliofemoral ligament. देखो ये हमारे साथ प्यूबोफेमोरल लिगामेंट है देख सकते हैं आप लोग ये जो प्यूबिस के साथ अटैच है ठीक है स्ट्रांगली यहाँ पर भी जो है ना फीमर के साथ अटैच है और ये कवर करते हैं कैप्सूल ऑफ द हेड को थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट हमारे साथ जो है ना वो है इशियोफेमोरल लिगामेंट इट कवर द जॉइंट पोस्टीरियरली ठीक है इशियोफेमोरल लिगामेंट जो है ना कहाँ पे है ये हिप जॉइंट की पोस्टीरियर पे लोकेट है it is fiber are twisted and extend from the ischium to the acetabulum ये ischium से acetabulum तक एक्सटेंड है और वहां पर ये थोड़ा सा ट्विस्टेड हुआ है ठीक है the fiber of the ligament form the zona orbicularis some of them are attached to the greater trochanter okay इसकी कुछ फाइबर्स जो है ना यहाँ ये हमारे साथ इशियोफेमोरल लिगामेंट है द इनर मोस्ट कुछ फाइबर इसके जो है ना ग्रेटर ट्रोकेंटर से भी अटैच होते हैं ये हमारे साथ जो हिप जॉइंट की पोस्टीरियर साइड है उसको कवर करते हैं ठीक है so these three ligament that is the iliofemoral ligament pubofemoral ligament and ischio-femoral ligament एक बात इधर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ एनाटॉमी की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ना इसको आप रट्टा करने के बजाय इसको रीजनल बेस पे याद करें जहाँ पर मतलब हमारे साथ एनाटॉमी जो है ना ये रीजनल बेस पे है ना तो जितने भी स्ट्रक्चर जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और जहाँ इंसर्ट होते हैं उसकी उसी के मुताबिक नाम रखे जाते हैं ठीक है और खासकर आर्टरीज जहाँ पर पास होते हैं तो उसकी मतलब परसों हमने ग्लूटेल रीजन की क्लास ली थी तो सारे इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी तो सारे नाम जो है ना उसकी रीजन के रिलेटेड होते हैं ठीक है यहाँ पर अगर लिगामेंट्स के नाम याद करना आप लोगों को मुश्किल हो तो सिंपली आप हिप जॉइंट हिप बोन के नाम अगर आपको याद हो कि हमारे साथ इलियम है ईशियम है एंड प्यूबिस है और फिर फीमोरल यहाँ पर लफ्ज आता है फीमर के लिए जिस तरह हमारे साथ फीमोरल आर्टरी होता है फीमोरल आर्टरी को इसलिए फीमोरल आर्टरी कहते हैं क्योंकि ये पैरेलल फीमर के साथ जाती है नीचे लोअर लिम्ब को ठीक है सो इन लिगामेंट का नाम इसी बुनियाद पर याद रखें इलियोफेमोरल लिगामेंट
pivofemoral ligament and ischiofemoral ligament. Clear? Other ligaments we have ligament of the head of the femur. It is a rounded ligament or ligamentum teres in a flat and triangular ligament. The apex is attached to the fossa capitalis and the base to the transverse ligament in the margin of the notch. ये हमारे साथ जो है ना लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर है, ये फोया कैपिटल्स के साथ अटैच हुआ होता है। ये जो है ना इंटरनल स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर ये हमारे साथ है, ठीक है। और नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे एसिटाबुलर लेब्रम, इसकी भी स्टेबिलिटी में काफी रोल है हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी में, ठीक है। लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर देखा आप लोगों ने ना डायग्राम में, चेक 35 things, acetabular labrum. It is a fibrocartilaginous rim attached to the margin of the acetabulum. See show? Fibrocartilaginous rim de da chikam de da acetabulum na chapera matastovi is a lip-like structure जोड़ कर lips की संग गई है ना, ये edge structure de acetabulum na chapera जोड़ कर दे दा जंग सरे दा, ये हमारे साथ एसिटाबुलर लेब्रा है, ठीक है, जो कि एसिटाबुलम को सराउंड किया है यहाँ पे। इट नैरोज द माउथ ऑफ द एसिटाबुलम, ठीक है। एसिटाबुलम की माउथ जितना नैरो होगी तो उतना ही इसकी स्टेबिलिटी में इजाफा होगा। अगर ये वाइड होगा तो डिस्लोकेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, जिस तरह कंजेनिटल एनोमलीज में आते हैं ना। This help in holding the head of the femur in position, ठीक है। एसिटाबुलर लेब्रम का मेन फंक्शन क्या है, ये हेड ऑफ द फीमर जो है ना वो एक खास पोजीशन पे रखता है। Now transverse ligament, it is a small ligament which is a part of acetabular labrum which bridge the acetabular notch. This notch is thus converted into a foramen. Notch is converted to a foramen. कम सेंटेंस न पोएगी ना, जो सेंटेंस आप लोगों को समझ ना आए ना तो उसके मतलब आप पूछ सकते हैं how notch is converted into a foramen। जिस तरह हमारे साथ एक मतलब नाच, इस तरह नाच होता है ना, नाच नाच के ऊपर उस साइड जब लेग तो अंदर से एक होल बन जाता है, ओके। उस होल को हम क्या कहते हैं, फोरामेन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि नाच जो नाच है उसके ऊपर ये ट्रांसवर्स लिगामेंट आता है और उस नाच को ये फोरामेन में कन्वर्ट करता है। और फोरामेन मोस्टली बॉडी में जितनी भी हमारे साथ फोरामेन है इसका ये जो है ना मेन पाथवेज होता है वेसल्स और नर्व्स पास करने के लिए, ठीक है। The notch is thus converted into a foramen which transmit acetabular vessels and nerves to the joint. Clear? ये हमारे साथ हिप बोन है, ठीक है। ये हमारे साथ एसिटाबुलम है, ये एसिटाबुलर लेब्रम है, ये जो है ना लिगामेंट ऑफ द फीमर है, ये हमारे साथ फीमोरल हेड है, ये होल ऑफ द फीमर है, ये ग्रेटर ट्रूकेंटर, लेजर ट्रूकेंटर, और इसकी जो कैप्सूल है और लिगामेंट है उन सारे को मतलब हटाया है। यहाँ पर ये जो है ना कैप्सूल की होल स्ट्रक्चर आपको नजर आती है, ठीक है। Now, blood supply to the hip joint. Multiple arteries are involved in its blood supply, okay. The most important here are obturator artery, medial circumflex artery, and lateral circumflex artery, and two gluteal arteries. Two gluteal arteries are superior gluteal artery and inferior gluteal artery. Artery, tree and diagram, okay.
Here we have a major femoral artery. कल मैंने आप लोगों को बताया था कि femoral artery किस तरह बनता है. जो हमारे साथ common iliac artery होता है वो internal iliac artery में convert होता है और external iliac में. Internal iliac जो है ना वो mostly pelvis और perineum में branches देते हैं और जो external iliac artery होती है it become a continuation of femoral artery. फेमोरल आर्टरी हम इसको तब कहते हैं जब ये इंग्वाइनल लिगामेंट से पास होता है. ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट इज द लिगामेंट व्हिच अटैच टू द इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल. यहाँ पर एक लिगामेंट कल मैंने आप लोगों को दिखाया था डायग्राम में. ठीक है, जो ही ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इंग्वाइनल लिगामेंट से पास होगा तो उसको नीचे हम क्या कहेंगे, फेमोरल आर्टरी कहेंगे. इधर फेमोरल आर्टरी से इंटीरियर ये जो हमारे साथ मीडियल साइड आप दिखाए हैं यहाँ पर एक ब्रांच आया है, उसको हम डीप आर्टरी दिताई कहते हैं. ठीक है, इस डीप आर्टरी दिताई से दो ब्रांचेस निकले हैं इधर हेड ऑफ द फीमर को. एक हमारे साथ इंटीरियरली जाता है और उसको यहाँ पर सरकमफ्लेक्स करता है और दूसरा जो है ना पोस्टीरियरली साइड पे जाता है और हेड ऑफ द फीमर को जो है ना होल साइड से कवर करता है. ठीक है, जो एंटीरियरली हमारे साथ जो आर्टरी जाता है उसको हम क्या कहते हैं ना, मतलब सॉरी लेटरली जो हमारे साथ जो आर्टरी आती है उसको हम लेटरल सरकमफ्लेक्स आर्टरी कहते हैं और जो हमारे साथ मीडियल साइड पे इस तरह जाती है, इस तरह आके यहाँ पर इसके साथ एनास्टोमोस होती है, उसको हम मीडियल सरकमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन लिया हो है आप लोगों को मजीद यहाँ ये क्लियर होंगे. ये यहाँ पर जो है जो सेंटर के साथ यहाँ इसकी नीचे और ऊपर गए हैं, ये हमारे साथ क्या है लेटरल सरकमफ्लेक्स आर्टरी और जो मीडियल साइड पे गए हैं ना इसको हम मीडियल सरकमफ्लेक्स आर्टरी कहते हैं. इसकी जो स्मॉल ब्रांचेस इधर हेड ऑफ द फीमर में इसमें दी है इसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलर आर्टरीज कहते हैं. यहाँ पर ये हमारे साथ हेड ऑफ द फीमर है. ठीक है, हेड ऑफ द फीमर को जो है ना स्पेसिफिकली ये फूवियस इंट्रेलस जो यहाँ पर ये ओपनिंग स्मॉल से है ना, यहाँ पर ऑब्चुरेटर आर्टरी जो है ना आई हुई है. ठीक है, ऑब्चुरेटर आर्टरी कम फ्रॉम द पेल्विस थ्रू ऑब्चुरेटर कैनाल पर, सो जो मैंने आपको बताया था ना, तो ये जो है ना ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस और ऑब्चुरेटर इंटरनस वगैरह को सप्लाई करता है. थोड़ा सा इसका जो स्मॉल ब्रांच है ये हेड ऑफ द फीमर को भी यहाँ इसकी सप्लाई है. क्लियर? नाउ nerve supply of hip joint. मोस्टली जहाँ पर आर्टरीज होंगे वहाँ पर सेम पाथवे में नर्व्स और वेन्स भी होंगे और नाम भी उसकी उसी तरह होते हैं. जिस तरह ग्लूटर रीजन में हमने पढ़ा था ना, ग्लूटर जो है ना सुपीरियर ग्लूटर नर्व, इंफीरियर ग्लूटर नर्व, सुपीरियर ग्लूटर आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटर आर्टरी, है ना, सेम नाम है सारों की. इस तरह यहाँ पर भी जो है ना नर्व सप्लाई भी सेम पाथवे और सेम फीमोरल नर्व से ब्रांच आया हुआ होता है स्पेसिफिकली हिप जॉइंट के लिए और ऑब्चुरेटर नर्व से भी स्मॉल ब्रांच आया हुआ होता है और जो है ना थर्ड सप्लाई क्या है सुपीरियर ग्लूटल नर्व की है. सुपीरियर ग्लूटल नर्व जो है ना ये हमारे साथ जो है ना ग्लूटियल मीडियस और ग्लूटियल मिनिमस को सप्लाई करता है और उसके साथ साथ जो है ना ये हमारे साथ हिप जॉइंट को भी इसकी सप्लाई है. ठीक है, और जो इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है उसकी स्पेसिफिक सप्लाई कहाँ पे है, ग्लूटियल मैक्सिमस को सप्लाई करता है. ठीक है, तो नर्व यहाँ पर कौन कौन से आए, फेमोरल नर्व की ब्रांच, ऑब्चुरेटर नर्व एंड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व. Now, how many types of movements are possible in hip joint? जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह हमारे साथ शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट इज आल्सो अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसी तरह हमारे साथ हिप जॉइंट है. लेकिन
shoulder joint में any type of mobility are almost possible, while here the movements occur, but up to it is restricted up to some degree. ठीक है, मतलब अगर हम लेग्स को की एब्डक्शन करते हैं तो मैक्सिममली अब 30 to 45 डिग्री हम उसको बॉडी से की एब्डक्शन करते हैं लेग को, लेकिन उसकी जो शोल्डर जॉइंट है उसकी तरफ पूरा उसकी सरकमडक्शन नहीं करवा सकते हैं। सरकमडक्शन तो जानते होंगे ना मोमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मोमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। हमारे साथ कौन कौन सी मोमेंट्स जो है ना हिप जॉइंट में पॉसिबल है, ये फ्लेक्शन हमारे साथ हिप जॉइंट में होता है, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। ये अगर अब हम क्लास में होते तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता कि किस तरह ये जो है ना हम लेग को मीडियली रोटेट करते हैं, किस तरह लेटरली रोटेट करते हैं, किस तरह एबडक्शन होता है, किस तरह एडक्शन, किस तरह एक्सटेंशन, किस तरह फ्लेक्शन। एडक्शन जो है ना to add something, एडक्शन means when you are going your leg toward the body, इसको एडक्शन कहते हैं। एबडक्शन जो है ना to move the leg away from the body, okay. Flexion means to flex some thing। यहाँ पर specific muscle involve है इस टाइप्स ऑफ मोमेंट्स में जो हमारे साथ फ्लेक्शन होता है हिप जॉइंट में, उसमें द मेजर मसल जो रिस्पांसिबल है वो स्वास मसल है और इलियकस मसल है, ठीक है। जो एसेसरी मसल फ्लेक्शन में रिस्पांसिबल होते हैं वो स्मॉल पेक्टिनियस मसल है, रेक्टस फेमोरस एंड सार्टोरियस मसल है, ठीक है। मसल जो है ना ये तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हम जो है ना कंपार्टमेंट वाइज हम आपको थाइज में जब तय में आएंगे तो डिटेल से यहाँ पर थोड़ा सा नाम इसके याद करने होंगे, फिर हम ताई आप लोगों को स्टडी करेंगे, क्लास लेंगे उसके, तो फिर आसानी से समझ आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। How extension occur in hip joint? Which muscles are responsible for the extension in hip joint? Gluteal maximus and hamstring। कल हमने पढ़ा था कि ग्लूटियल मैक्सिमस का मेन फंक्शन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द हिप, एक्सटेंशन ऑफ द लेग एट हिप जॉइंट, और दूसरा फंक्शन हमने क्या बताया था, दूसरा फंक्शन हमने क्या बताया था, मीडियल रोटेशन में इसका थोड़ा सा है, लेकिन वो जो है ना ग्लूटियल मीडियस और मिनिमस का उसमें खास फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट जो है ना, लेग को हम जब एक्सटेंड करते हैं हिप जॉइंट के थ्रू, तो वो ग्लूटियल मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग मसल है। हैमस्ट्रिंग मसल जो है ना मीडियल कंपार्टमेंट में जो मसल होते हैं मसल। एडक्शन, एडक्शन अब हिप जॉइंट में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व है, एडक्शन में हमारे साथ एडक्टर लंगस है, एडक्टर ग्रीवियस है और मैग्नस है, ठीक है। जो एसेसरी नर्व यहाँ पर जो एसेसरी मसल यहाँ पर है वो पेक्टिनियस है एंड ग्रेसिलस है, ठीक है। एबडक्शन में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व है, उसमें ग्लूटियल मीडियस है और ग्लूटियल मिनिमस। कल हमने इसकी मेन फंक्शन बताई थी कि ग्लूटियल मीडियस और मिनिमस का मेन फंक्शन क्या है, एबडक्शन ऑफ द लेग एट हिप जॉइंट, ठीक है। मीडियली रोटेशन में कौन कौन सी मसल है, इट बेंड द इंटीरियर फाइबर ऑफ द ग्लूटियल मीडियस एंड मिनिमस, दोनों का जो है ना एबडक्शन एंड मीडियल रोटेशन में लेटरल रोटेशन कौन कौन सी मसल है, उसमें टू ऑब्चुरेटर होता है, टू जिमिलाई एंड क्वाड्रेटस फेमोरस। कल हमने जो लास्ट 5 मसल मैंने आपको ग्लूटियल मीडियस ये ग्लूटियल रीजन में बताए थे, टू ऑब्चुरेटर दैट इज एक्सटर्नल ऑब्चुरेटर, इंटरनल ऑब्चुरेटर, सुपीरियर जिमिलस, इंफीरियर जिमिलस एंड क्वाड्रेटस फेमोरस। इन 5 मसल का जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका पेरिफॉर्मस मसल भी था कि इनका क्या है,
नर्व सप्लाई भी ऑलमोस्ट जो है ना सेम है, S1 S2 से जो है ना सैक्रल प्लेक्सस से इसकी नर्व सप्लाई है, और इसका जो फंक्शन है वो भी एक जैसा है। ये जो है ना लेटरल रोटेशन आप ये लिंक करता है थ्रू हिप जॉइंट का। ठीक है, तो कौन कौन सी मूवमेंट्स किन किन मसल की वजह से यहाँ पर होता है, कौन कौन से मूवमेंट्स है? फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एडक्शन है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में पर तो लिखा नहीं है, लेकिन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पर मैं आपको बता है ना, जो ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं, द मोस्ट कॉमन साइट ऑल ओवर द बॉडी व्हिच इज इन व्हिच फ्रैक्चर इज द हेड ऑफ द फीमर। ओके, हेड ऑफ द फीमर में हमारे साथ फ्रैक्चर होता है खासकर ओल्ड एज में। ठीक है, इसमें एक इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर होता है, एक एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होता है। अगर इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर हो तो उसमें ए वास्कुलर नेक्रोसिस होगा। ठीक है, ए वास्कुलर नेक्रोसिस इसलिए होगा कि इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर में हमारे साथ ये जो इसकी जो ब्लड सप्लाई है ये लेटरल सरकमफ्लेक्स और मीडियल सरकमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी जो यहाँ पर आई है, ये कैप्सूल के साथ साथ जो है ना अंदर जाती है। अगर ये कैप्सूल के अंदर फ्रैक्चर हो जाए हेड ऑफ द फीमर को, तो इसकी ब्लड सप्लाई कंप्लीटली वो खत्म हो जाती है, तो ये एवास्कुलर ये हिस्सा जो है ना रह जाता है। तो इसके लिए ओल्ड एज में हम फिर इस हिस्से को हटा देते हैं और इसमें हम प्रोस्थेसिस लगाते हैं। ये जो है ना स्टील से एक चीज बना हुआ होता है, जिस तरह इसका हेड ऑफ द फीमर है, सेम इसी तरह एक चीज हम इस यहाँ पर लगाते हैं। और अगर बच्चों या एडल्ट में ये इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें हम कैनुलेटेड स्क्रू या डायनामिक हिप स्क्रू लगाते हैं। दोनों चीजें हम इसमें लगा सकते हैं। हमारे साथ या हेड ऑफ द फीमर फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें हम डायनामिक स्क्रू या जो IMN मैंने आपको फ्रैक्चर में बताया था इंट्रामोडुलर नेलिंग, ये भी हम करवाते हैं इसकी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, दूसरा हमारे साथ यहाँ पर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में हमारे साथ डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट आता है। ये डिसलोकेशन यहाँ पर वेरी रियरली होता है, लेकिन पेशेंट अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आप लोगों के साथ प्रेजेंट हो और उसका जो है ना लेग थोड़ा सा जो है ना अपनी साइज से थोड़ा सा कम हुआ हो और वो एक्सटर्नली रोटेट हो, तो आप जो है ना पूरा उसकी हिप जॉइंट एक्सरे करवा ले उसको, जो है ना इसका हेड जो है ना आगे जा चुका होगा और इसका जो एसिटाबुलर ये लेब्रम है ये थोड़ा सा वीक होता है, तो यहाँ पर इसकी फ्रैक्चर हो जाती है और हेड ऑफ द फीमर थोड़ा आगे चला जाता है। ठीक है, अगर हिस्ट्री ऑफ पाल हो तो ये मतलब यहाँ पर भी इस तरह की आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सही मतलब